Did I tell you the summary of the chapter? Did I tell you the summary of the chapter or not? No, sir. Okay, no problem. Today I will teach you the summary of the chapter, okay? Is my screen visible to you? Students, is my screen visible to Yes, you? sir. Chalo, Yes, theek sir. hai. Yes, sir. Very good, wonderful. I told you about Masti Venkatesh Iyengar, June 6, 1980, 1891 to June 6, 1986. बता ही दिया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दिए थे मैंने. दिस इज द होसा हाली वेयर रंगा एंड नरेटर श्यामा लिव्ड. यहाँ पर कौन कौन रहता था? रंगा रहता था और श्यामा रहता था. दीज आर द करेक्टर्स. I think I taught them yesterday only. If I did not teach, now I will teach you, okay? सर Ranga the इम्पोर्टेंट protagonist. एरियाज यहाँ तक हो जाता है. अच्छा, इम्पोर्टेंट एरियाज मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे ये वाले. Did I explain the important areas? Yes, sir. Okay, fine. Now write down the theme of the story. Are you able to see the theme of the story? Yes, sir. Then note it down, please. Note करो इसको. The influence of English, the language and the way of life on Indian life. Astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjectures than what they learn from the study of the stars. Arranged marriage, the conflict between traditions and modernity. Note करो इसको.
Noted. हाँ जी बच्चों, नोट कर लिए? Tell me, noted or not? No, sir. Then नोट कर फटाफट से। करेक्टर्स नहीं करने आपको सिर्फ थीम नोट करनी है। देखो जी, ऑलरेडी नोटेड यस्टरडे, कल ही कर लिए थे ना आपने करेक्टर वगैरह, तो आज नहीं करने आपको। Sir, done. Done. Okay, fine. Just wait a minute. Now we'll start writing down the summary of the story. Okay, I will explain the summary thoroughly. Is everything properly visible or some issue is there? रिप्लाई किया करो फटाफट से। सब ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Chapter 3, Ranga's marriage. Who is the author of the story? Ranga's marriage. Masti Venkatesh Iyengar. Masti Venkatesh Iyengar was born in on 6 June 1890 1896 था, कितना था? 1891. 1891 to 6 June 1981 86 है 88. 80 86. 86 है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। ओके, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज अ विलेज होसाहाली। एक गांव है होसाहाली। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज रंगा। See, first of all, the narrator discusses about Ranga's marriage title. Okay, he says that you people might have thought that there may be some fancy title for the story,
But then the story is not about anything else. It is about Ranga's marriage. The narrator gives some suggestions like Girja Kalyana, Ranganath Vivaha, Ranganath Victory, and so on. But he says that the story is all about Ranga's marriage. See, if the narrator gave the title Ranganath Vivaha, then it could not be about the influence of English language. The narrator wants to cover both the things, Ranga and his marriage. First of all, Ranga's marriage he wants to cover, and secondly, he wants to cover the use of English language in those days. Okay, that is why he has given the title in English. All fine? And after that, he asks a question to the reader. Do you know something about Hosahali? He himself answers, okay, you don't know. What a pity you don't know the name of the village Hosahali. Well, it is not your fault. It is the fault of the Sahibs, those who lived in England, and it is also the fault of our own Indian people who were in power. यानी कि नरेटर डायरेक्टली ब्लेम करता है ब्रिटिशर्स को. किसको ब्लेम करता है? ब्रिटिशर्स को. बिकॉज इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स टू मेंशन द नेम ऑफ होसाहाली ऑन द मैप. नरेटर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, खूब फ्रस्ट्रेशन निकालता है. He says that if your village is not mentioned in the map, it is not the fault of poor cartographer. ये poor cartographer का fault नहीं है. Do you know cartographer? Cartographer is one who makes map. कौन होता है? जो मानचित्र वगैरह बनाता है. तो नरेटर साफ साफ कह रहा है कि ये कोई कार्टोग्राफर का फॉल्ट नहीं है. एक्चुअली इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिटिश. किनका फॉल्ट है? ब्रिटिश का फॉल्ट है. और ब्रिटिश के लिए वो अपनी पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालता है. वेल सेइंग ब्रिटिश आई मीन ब्रिटिशर्स. ओके. एंड ही आल्सो ब्लेम्स आवर ओन इंडियन पीपल दोज हु वर इन पावर. ऐसे इंडियन लोगों को ब्लेम करता है जो लोग सत्ता में थे. एंड ही mimics the Indian people and he criticizes them by saying that you know our people are just like sheep. किसकी तरह है? sheep की तरह है. If a sheep goes to the pit, the others follow it blindly. जैसे कि कोई एक sheep अगर गड्ढे में जाती है ना, तो दूसरी जो बची हुई sheep होते हैं उसके पीछे पीछे अंधी होकर के उसी गड्ढे में चली जाती हैं. I mean as a sheep follows the other sheep, in the same way our Indian people too follow the same tradition. They also followed the British only. That is why they have not mentioned even a shadow of our village in Indian map. कहीं भी नहीं है Indian map में. Oh, later he regrets, sorry, he feels sorry. He says that I started from somewhere else and I went somewhere else. Okay, from where did he start? From where did the narrator start the story? The narrator started the story. Yeah, the narrator started the story Ranga's marriage, but he is shouting, he is discussing about the village Hosahali. Okay, so when a writer rambles, when a writer wanders other than the topic, this technique is called digression. क्या कहते हैं इस टेक्निक को? डिग्रेशन कहते हैं. तो डिग्रेशन के लिए नरेटर सॉरी फील कर रहा है. वो सॉरी, आई स्टार्टेड फ्रॉम रंगाज मैरिज एंड आई वेंट टू होसाहाली. में होसाहाली के बारे में बात करने लग गया, मैं ब्रिटिशर्स के बारे में बात करने लग गया, और मैं जो है कभी जो है अपने इंडियन पीपल के बारे में बात करने लग गया, कभी भेड़ों के बारे में बात करने लग गया. दिस वे ही फील सॉरी. खैर कोई नहीं. Whenever the matter of our village comes, this is what happens. जब जब हमारे गांव का मैटर आता है ना, तो बस यही होता है. यानी कि हमारे गांव को लोग इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है. नरेटर यही कहना चाहता है. See, he says कि what the state of Mysore is to Bharatvarsha. What the state of Mysore is to Bharatvarsha is Hosahali to Mysore. And as the Karik Dabu is to festival, what the Karik Dabu is to a festival is the state of Mysore to Bharatvarsh. And what the feeling is to Karik Dabu is Hosahali to Mysore. I mean, in a poetic language,
he justifies the importance of खुशहाली only। इसको बड़े ही डीपली समझाया गया है, ये नरेटर ने कैसे समझाया है मैं बताता हूँ। मैसूर टू भारतवर्ष, कैरिक दाबू फेस्टिवल। आपको लग रहा होगा क्या लिख रहे हैं, रंगाज मेरे पढ़ना था, मैसूर भारतवर्ष कैरिक दाबू फेस्टिवल, क्या कहना चाहते हैं इससे? वो ये कहना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। अब बात करते हैं हम समझो, कैरिक दाबू इज अ स्वीट, क्या है? इट इज अ स्वीट। आपने गुजिया सुनी होगी, हैव यू हर्ड द वर्ड गुजिया? खाई नहीं होगी तो सुनी तो जरूर होगी। अरे मैं उस मिठाई की बात कर रहा हूँ जो क्या नाम है, कैसी होती है मैं बताऊँ तुम्हें। अरे मैदा की या आटे की बनी हुई होती है और उसमें अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह भरे जाते हैं। गुजिया, समझ रहे हो गुजिया? इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, रुको गुजिया की इमेज दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। गुजिया स्वीट इमेज, स्वीट इमेज। ये देखो, ये आगे कितनी सारी गुजिया आ गई। यू ऑल आर हम्बली रिक्वेस्टेड नॉट टू गेट वाटर इन द माउथ, ओके? मुंह में पानी नहीं लाना है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये मेरी गलती है वैसे। आर यू एबल टू सी इट? दिखाई दे रही है? बोलो यस और नो। हाँ, तो अब समझ आ गया। आई मीन कैरिक दाबू इज अ साउथ इंडियन स्वीट लाइक गुजिया। In English we can call it, we may call it pastel. What we may call it? Pastel. Okay, so now you understand. Mysore you understand very well. Mysore is a city in Karnataka, all right? So as Mysore is important to Bharatvarsh because Mysore is the place from where we get a lot of spices. What I am telling is very true and you should listen it very carefully, okay? यानी कि मैसूर से हमें स्पाइसेस वगैरह मिलते हैं, मैसूर से हमें कॉफी मिलती है। दैट इज वाई मैसूर इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर भारतवर्ष, आई मीन फॉर इंडिया। कह सकता हूं ना मैं कि मैसूर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। मैसूर इंडिया के लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी के कैरिक दाबू फेस्टिवल के लिए, क्योंकि जब किसी फेस्टिवल पर अगर स्वीट नहीं बनाई जाए, व्हाट लुक लाइक अ फेस्टिवल, दिवाली है और मिठाई का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा, will it look like a festival? No, sir.
नो एग्जैक्टली, क्योंकि मिठाई नहीं बने तब तक क्या मजा, मिठाई तो होनी चाहिए, कम से कम 2-4 kg तो होनी चाहिए मिठाई। तो बस देखिए, as Mysore is important to Bharatvarsha because it provides coffee, because it provides spices and many other minerals to India. In the same way, Karik Dabu is important to a festival because it adds some grace in the beauty of the festival, because it makes the festival charming. All right, अगर फेस्टिवल पर स्वीट्स नहीं बनाएगी तो फेस्टिवल सूखा सूखा लगेगा। खैर, ये हो गया। अब बात करते हैं मैसूर के लिए भूसाहाली उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी के कैरिक दाबू के लिए उसकी फिलिंग। अब आप कह रहे हो कि फिलिंग क्या होती है? मैंने आपको गुजिया दिखा दी, गुजिया के अंदर से अगर अंदर वाला माल निकाल दिया जाए, डज इट लुक लाइक टेस्टी? विल इट बी टेस्टी? फिर देखो गुजिया देखो, अभी तो समझ आएगा। इसके अंदर का माल अगर निकाल दिया जाए तो विल इट बी टेस्टी? देखो, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं लेट हो जाऊंगा, मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। यू हैव टू रिप्लाई फास्ट। आवाज नहीं आई अभी तक आपकी? नो सर। नो सर। यस, ऐसे आंसर देना। जितना आप इंटरेस्टिंगली रिप्लाई दोगे, स्टोरी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी। ध्यान रखना, आज का सेशन बहुत ही यूनिक होने वाला है, वंडरफुल स्टोरी है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी ऑफ द बुक स्नैपशॉट, समझ गए? और मेरी तो है ही वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। ठीक है, तो देखिए कि अगर मैसूर में से भूसाहाली को निकाल दिया जाए तो मैसूर का कोई बेनिफिट, मैसूर का कोई इंपोर्टेंस नहीं रह जाता। बिल्कुल वैसे ही नहीं रह जाता जैसे कैरिक दाबू के अंदर से उसकी फिलिंग को निकाल दिया जाए। समझ गए? So the narrator wants to indirectly say that Hosahali is too much important. Even the people have not mentioned the name of the village. फिर भी लोगों ने जो है गांव के नाम को मेंशन नहीं किया है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। What I have said is absolutely true. Believe me, जो कुछ मैं कह रहा ना absolutely true है, विश्वास कीजिए। और मैं यहाँ पर अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने गांव के बारे में इतना ग्लोइंगली बोल रहा हूँ। हमारे पास में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? गुंडा भट्टा। क्या नाम है? गुंडा भट्टा, जो कल आपने पढ़ा था ना। गुंडा भट्टा इज अ डॉक्टर। कौन है? क्या नाम है? गुंडा भट्टा कौन है बाय प्रोफेशन? एक डॉक्टर है, ठीक है। ये बहुत सारी जगह पर घूमे हुए हैं, बहुत सारे प्लेसेस पर घूमे हुए हैं। नो, नॉट इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड में नहीं गए। इफ एनीवन आस्क हिम, अगर कोई उनसे पूछता है ना कि आप इंग्लैंड नहीं गए क्या, तो वो सिंपली कहता है नहीं अन्ना, आई हैव लेफ्ट इट फॉर यू। मैंने इस प्लेस को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अन्नाया का मतलब समझ गए होंगे, अन्ना साउथ इंडिया में बड़े भाई को कहते हैं। ठीक है, नहीं भैया, ऐसे हम भैया नहीं कहते, ऐसे वो अन्ना यूज करते हैं। नहीं अन्ना, मैंने वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे ही जो है नैरेटर ने उसी की भाषा में बोला कि नहीं अन्ना, मैं इंग्लैंड नहीं गया। I have left that too. Running around like a flea-pester dog is not my job. देखिए, एक फ्ली पेस्टर डॉग की तरह इधर उधर भागना मेरा काम नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या समझेंगे? फ्ली, फ्ली एक इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट होता है। जब ये इंसेक्ट किसी डॉग के ऊपर बैठ जाता है, किसके ऊपर? डॉग के ऊपर बैठ जाता है, तो उसका खून सक करता है, यानी ब्लड सक करता है। ब्लड सक करता है तो डॉग को पेन होता है, तो डॉग इस फ्ली से बचने के लिए क्या करता है? भाग जाता है। क्या करता है? भाग जाता है। तो नैरेटर कह रहा है कि रनिंग लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट माय डॉग, यानी एक पिस्सू के द्वारा सताए हुए कुत्ते की तरह इधर उधर भागना मेरा काम नहीं है भैया, इसीलिए मैं नहीं गया वहां पर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. Good, very nice. देखो, next, the narrator talks about mango trees, that there are mango trees in our village. और स्पेशल क्वालिटी के मैंगो के बारे में तो तब पता चला था जब मैं एक दिन, क्या हुआ कि मैंने एक मैंगो तोड़ा, मैंगो तोड़ के हम सब ने उसकी चटनी बनाई। चटनी बना करके बाद में हमको जो है कफ हो गया था। क्या हो गया था? कफ हो गया था। तो फिर मैं जो डॉक्टर के पास गया था, देन द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ मैंगो ऑफ भूसाहाली, भूसाहाली के मैंगो के बारे में तब उसने बताया था। यानी मैंगो इतना खट्टा होता है, इतना खट्टा होता है कि आप खाओ मत, जस्ट एक बाइट लीजिए इसकी,
जैसे ही एक बाइट लेंगे ना तो इसकी जो सावरनेस है ना कहाँ पर पहुंच जाएगी, इसकी सावरनेस सीधे ब्रह्मरंध्रा पर पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? ब्रह्मरंध्रा। ब्रह्मरंध्रा देखिए, ब्रह्मरंध्रा समझ आ रहा है क्या होता है ब्रह्मरंध्रा? ब्रह्मरंध्रा आपकी, एक सेकंड जस्ट कैमरा ऑफ हो गया ना, ऑन करता हूँ। ब्रह्मरंध्रा आपके यहाँ स्कल के ठीक पास में एक बोन होती है। क्या होती है? बोन होती है। तो जैसे ही आप कोई खट्टी चीज खाते हैं ना तो सीधा करंट यहाँ पर लगता है और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं ब्रह्मरंध्रा। यानी कि आम इतना खट्टा होता है, इतना खट्टा होता है कि इसका खटास सीधे के सीधे कहाँ पहुंच जाता है? हमारे ब्रह्मरंध्रा में पहुंच जाता है। एक बार क्या हुआ था कि ऐसा ही आम मैंने ले लिया था, तो मैं जो है खाया नहीं था, चटनी बनाई थी हम सब ने, तो जो है फिर हमें खांसी हो गई तो हम डॉक्टर के पास गए। देन द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ मैंगो। खैर कोई बात नहीं, जैसे मैंगो फेमस है ना वैसे ही हमारे यहाँ पर दूसरी चीजें भी फेमस हैं। दूसरी कौन कौन सी चीजें फेमस हैं देखिए, जैसे कि आप बात करते हैं गांव के अंदर एक पॉन्ड है। क्या है? विलेज पॉन्ड है। ठीक है, विलेज पॉन्ड में क्या है कि विलेज पॉन्ड में क्रीपर है। डू यू अंडरस्टैंड क्रीपर? क्रीपर होती है वाइन। वाइन का मतलब WIN नहीं, VIN। देयर आर टू वर्ड्स एक्चुअली, एक होता है वाइन WIN, एक होता है वाइन VIN। यानी विलेज पॉन्ड में एक वाइन है और वो वाइन यानी कि एक लता है। उस जब आप पॉन्ड में नहाने के लिए जाए ना तो इस बेल के कुछ पत्ते लेते चले आए। क्या लेते चले आए? कुछ पत्ते लेते चले आए। इस बेल के पत्ते इतने चौड़े होते हैं, इतने चौड़े होते हैं कि आपको, क्या नाम है, आपको आफ्टरनून के टाइम पर या इवनिंग के टाइम पर ये टेंशन नहीं होगी कि आज मैं खाना किस पर रख के खाऊं। तो इनडायरेक्टली नैरेटर जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि जो पत्तलें होती ना, जो दावत में सर्व की जाती हैं, कहते हैं उसको पत्तल वाली दावत, बैठ के खाते हैं लोग, तो वो पत्तलें इसी के पत्तों की बनाई जाती हैं। तो जैसे कि मैंगो फेमस हो गए एंड विलेज पॉन्ड फेमस हो गया, और क्या नाम है, क्रीपर फेमस हो गई। देयर आर सेवरल थिंग्स। अगेन द नरेटर रैम्बल्स, फिर से क्या करने लग गया? रैम्बलिंग करने लग गया। एंड अगेन ही फील सॉरी, सॉरी आई स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड आई वेंट समवेयर एल्स। खैर कोई बात नहीं है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेनेवर देयर कम्स अबाउट माय विलेज। जब जब मेरे गांव के बारे में बातें बताने का मौका आता है ना तो बस यही होता है। देखिए, खैर कोई बात नहीं है। यू नो वेरी वेल दैट if you want to know something about a place, the best way to know about a place is to visit that particular place। यानी किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में, अगर वहाँ की ट्रेडिशन, अगर वहाँ की कल्चर आपको जाननी है तो उसका सबसे अच्छा जो बेहतरीन तरीका है ना वो ये है कि आप जो है उस जगह को घूम लीजिए। ठीक है, आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज, व्हाट थिंग्स आर अलाइक हियर। ठीक है, कौन कौन सी चीजें देखने के लायक हैं। एंड व्हेनेवर समवन wishes to come to visit here, drop me a line। मेरे लिए क्या कर देना? एक लेटर डाल देना। drop me a line एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब है एक छोटा सा खत डाल देना मेरे लिए। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें घूमने के लायक हैं और यहाँ की कौन कौन सी चीजें अच्छी। ठीक है, यानी कि बहुत कुछ हो गया, रैम्बलिंग खूब कर ली। नाउ द नरेटर कम्स ऑन द एक्चुअल पॉइंट which was Ranga's marriage। See what he says। He says that what I am going to tell you something that happened 10 years ago। कितने पहले हुआ था? 10 years ago हुआ। हुआ क्या था? उस टाइम पर लोग जो इंग्लिश नहीं जानते थे। इंग्लिश वॉज अ प्राइसलेस कमोडिटी इन दोज डेज। बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीज हुआ करती थी। और उस टाइम पर हमारे अकाउंटेंट साहब, जो गांव के अकाउंटेंट है ना, उन्होंने अपने बेटे रंगा को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया था? बेंगलोर भेज दिया था। समझ गए? कहाँ भेजा? बेंगलोर भेजा था। अच्छा, उन दिनों ना तो हम जो है कन्नड़ भाषा में बात करते टाइम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करते थे, ना ही हम इंग्लिश के वर्ड्स को समझ पाते थे। एक बार की बात है, क्या हुआ था कि मैं रामाराव के घर पर था। कहाँ पर था मैं? रामाराव के घर पर था। बड़ी ही डिस्ग्रेसिंग सी इंसिडेंट हुई थी, मैं आपको बताऊं बात। डिस्ग्रेसिंग सी इंसिडेंट क्या थी कि मैं जब रामाराव के घर पर था ना तो रामाराव के बेटे ने एक फायरवुड का बंडल परचेज किया। आई मीन के ईंधन की लकड़ियां परचेज की, या ईंधन परचेज किया था, मैं ये कहूँ। ईंधन का मतलब लकड़ियां वगैरह परचेज की होंगी किसी लकड़ी बेचने वाली से।
तो उसने वो लकड़ियां परचेज की, उसने उससे पूछा कि कितने पैसे हो गए, तो लेडी ने आंसर दिया था कि 4 पैसे हो गए। कितने हो गए? 4 पाइस। अच्छा, जैसे ही उसने 4 पाइस कहा तो रामाराव के बेटे ने कहा था कि उसके पास चेंज नहीं है। क्या नहीं है? चेंज नहीं है। अच्छा, द लेडी डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज। लेडी को पता ही नहीं था, तो इसीलिए वो लेडी बड़बड़ाती हुई चली गई, ये सोच के कि करम जले ने मेरा पैसा खा लिया। उसे क्या पता था कि वो ये कह रहा है कि चेंज नहीं, सुबह आ जाना। वो नहीं समझ पाई, वो चली आई वहां से। अच्छा, नरेटर को भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ चेंज? तुमको तो पता ही होगा ना। डू यू नो द मीनिंग ऑफ चेंज? अरे यस और नो? स्टिल यू आर नॉट स्पीकिंग। देख लो, मैं भी स्टोरी को बोरिंग बना दूंगा। आई मेक इट Yes, मोनोटोनस। sir. Yes, sir. क्या मतलब होता है चेंज? है क्या होता है चेंज का मतलब, जसवीर? Sir, छुट्टा. छुट्टा, एग्जैक्टली, खुले पैसे। यानी कि उसके पास खुले पैसे नहीं थे। खैर कोई बात नहीं है। नरेटर को भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, उसको तब पता चला था जब उसने रंगा से पूछा था। खैर कोई बात नहीं। तो रंगा जो है ऐसा पहला व्यक्ति था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए बंगलोर गया था। अच्छा, जब रंगा वहां से लौट के आया था ना अपने स्टडी करने के बाद में, तो जो है लोग उससे देखने के लिए उसके घर पर दौड़ते हुए चले जा रहे थे। भीड़ जब जा रही थी तो नरेटर ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? क्या? अरे वो अकाउंटेंट का बेटा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए गया था वापस आ रहा है, इसीलिए लोग उसे देखने के लिए चल पड़े। तो नरेटर भी चल पड़ा। मैं बताऊं आपको कि वहां रंगा को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि अगर सब लोग जो है घर के अंदर एंटर हो जाते ना, तो द प्लेस कुड हैव बीन टर्न्ड इनटू व्हाट वी कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रेफरेंस क्यों लिया गया। इसका रेफरेंस इसीलिए लिया गया क्योंकि 1875 में कोई घटना हुई थी। घटना ये थी कि एक हॉल था, उस हॉल में इतने लोग घुस गए, इतने लोग घुस गए कि कुछ लोग तो स्टैंपिंग की वजह से यानी कि कुचलने की वजह से, कुछ लोग सफोकेशन की वजह से मर गए, बहुत सारी मौतें हो गई। तो इसीलिए नरेटर कह रहा कि इतनी भीड़ थी, यानी रंगाज होमकमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। क्यों इवेंट थी? बिकॉज रंगा वाज द फर्स्ट वन who went to English medium who went to study in English medium school to Bangalore, and when he came back people gathered to have a glance of Ranga. That is why his homecoming was a great event. इसीलिए उसकी homecoming जो है great event थी। तो अगर सब लोग घर में घुस जाते ना तो कोई हादसा हो सकता था, इसीलिए वो जो है, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। यानी ऐसा हादसा हो सकता था जैसा 1875 में कैलकाटा में हुआ था। उस हॉल को क्या नाम दे दिया? ब्लैक हॉल। कैलकाटा का ब्लैक हॉल, समझ गए? लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि सब लोग घर में नहीं घुसे थे। खैर कोई बात नहीं। जैसे ही भीड़ जो छट गई थी ना, तो भीड़ के छटने के बाद मैं भी रंगा की तरफ गया। अच्छा, भीड़ को देखते ही रंगा जो घर से निकल के आया, चेहरे पर स्माइल लेके, और आराम से लोगों से बातें कर रहा था। लोग भी जो है उससे देख रहे थे, एक झलक देखने के लिए बेताब थे। जब लोगों को ये पता चल गया कि रंगा में कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ से 6 महीने पहले गया था। अच्छा, एक लेडी आई थी, लेडी क्या कहूँ मैं, एक दादी माँ कहता हूँ, दादी माँ आई थी। उसने रंगा की चेस्ट पर हाथ फेरा, और जब उससे जनेवा मिल गया ना, जनेवा जानते हैं ना, पंडित लोग पहनते हैं साउथ इंडिया में, खैर ये ट्रेडिशन है, ऑलमोस्ट पीपल पहनते हैं। तो जैसे ही जनेवा उसको उसकी चेस्ट में, गर्दन में मिल गया था ना, तो सेटिस्फाई हो गई और कहा कि एटलीस्ट रंगप्पा हैज नॉट लॉस्ट आवर कास्ट। रंगा ने अपनी कास्ट नहीं खोई है, यानी रंगा ने अपनी पहचान नहीं खोई है। नहीं तो देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो फैशन में आकर के ट्रेडिशन को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। जैसे कि चोटी कटा लेते हैं, जनेवा छोड़ देते हैं, लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया। तो जब देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो भीड़ ऐसे खत्म हो गई जैसे किसी बच्चे के मुंह में लॉलीपॉप घुल जाती हो। बहुत ही फैंटास्टिकली कंपेयर किया नरेटर ने। अच्छा, मौका देख करके मैं गया, रंगा आया। रंगा ने, देखिए, रंगा के रिस्पेक्ट करने के तरीके को नरेटर बड़ा ही एम्फेसाइज करके कहता है। तो उसने ऐसा नहीं किया जैसा कि आजकल के लड़के करते हैं। आजकल के लड़के कैसे करते हैं कि जैसे मुंह तो होगा सूर्य की तरफ और बॉडी ऐसे चेस्ट आगे निकाल के, गुड मॉर्निंग सर, मतलब देख रहे हैं उधर ऊपर की तरफ और बात कर रहे हैं अपने टीचर से। रंगा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
रंगा नॉट ओनली फोल्डेड हिज हैंड्स बट ऑल्सो ही टच्ड हिज फीट, यानी उसने केवल हाथ ही नहीं जोड़े बल्कि उसने नमस्कार करके पैर भी छुए। जैसे उसने पैर छुए तो जो है मैंने उसे वरदान दिया। क्या वरदान दिया? आई ब्लेस्ड हिम, मे यू गेट मैरिड सो। समझ गए? अच्छा, दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, अब वहां से नरेटर चला आया। अब चले आने के बाद में जब नरेटर जो रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू हिज हाउस, रंगा उसके घर पर गया। और रंगा घर पर गया तो उन्होंने बातें की। अच्छा, वो अपने हाथ में कुछ संतरे वंतरे लेकर के गया था, तो बातें हुई। बातें हुई तो नरेटर ने पूछा, अच्छा रंगप्पा ये बताओ शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो रंगा कहता है कि देखिए, मैं शादी एक मैच्योर लड़की से करूंगा। किससे करूंगा? अभी तो मैं शादी करने का कोई ख्याल नहीं है, अगर करूंगा अभी तो मैच्योर लड़की से करूंगा, और मैं भी मैच्योर हो जाऊंगा तब करूंगा। उसने एक एग्जाम्पल दिया। देखिए, जब ये कहा था ना कि मैं एक मैच्योर लड़की ढूंढ रहा हूँ, राइट गर्ल ढूंढ रहा हूँ, तब उसने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ, उसकी हाल ही में 6 महीने पहले शादी हुई है। वो ऑफिसर जो है 30 साल का है और उसकी जो घरवाली है ना वो 25 साल की है। दोनों की लाइफ आराम से मस्ती से चल रही है, बहुत ही स्मूथली चल रही है। मान लो मैं किसी इमेच्योर लड़की से शादी कर लेता हूँ, वो इतनी इमेच्योर हो कि मैंने उससे प्यार से कोई बात बोली और मेरे प्यार से बोले हुए वर्ड्स को वो गुस्से में ले ले, तो ऐसी लड़की से क्या करना शादी करने से। इस तरह से एग्जाम्पल देने लगा। और देखिए और एग्जाम्पल देने लगा कि हाल ही में ना बंगलोर में क्या हुआ था कि एक ट्रूप आया था और उस ट्रूप ने शकुंतला नाम का प्ले, कालिदास के द्वारा जो लिखा गया था, वो प्ले ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, उस प्ले की अगर बात करें तो अगर शकुंतला छोटी लड़की होती आजकल की लड़कियों की तरह, नरेटर इनडायरेक्टली चाइल्ड मैरिज की बात कर रहा है, तो शायद दुष्यंत का कोई मैटर ही नहीं उठता कि वो उसके प्यार में पड़ता। तो इसीलिए मैं जो है एक परफेक्ट और मैच्योर लड़की देखूंगा, और वो भी मैच्योर होने के बाद में। ये था उसका डिसीजन, दैट इज व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। खैर कोई बात नहीं, और कोई तो रीजन नहीं है? नहीं, और कोई नहीं रीजन नहीं है। वन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, रंगा ने ये भी कह दिया। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल अरेंज मैरिजेस तो होती तो हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में आप जानते ही हैं कोई एडमायर नहीं कर सकता, क्योंकि एडमायर करना चप्पल है पड़ेंगी। खैर इस तरह की बातें हैं। और रंगा भी हंसने लगा, नरेटर भी हंसने लगा। नरेटर इस बात को सुनकर दुखी हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि एक ऐसा लड़का जो बहुत ही बढ़िया स्मार्ट सा हैंडसम बनेगा किसी के लिए, उसने ये डिसाइड कर लिया है कि आजीवन कवारा रह जाऊं। यानी कवारा रहने का वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि देखिए, कह रहा था कि किसी छोटी लड़की से, ऐसी छोटी लड़की से शादी करना जिसको प्यार से बोले हुए वर्ड्स जो है गुस्से में ले ले, या फिर उसको ये नहीं पता हो कि हाउ टू ड्रिंक मिल्क एंड हाउ टू बाइट नेल्स, तो ऐसी लड़की से शादी करने से तो फार बेटर कवारा रह जाए। तो इस बात को सुनकर के नरेटर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया और कह रहा था कि अरे ऐसा लड़का जिसकी मैंने सोचा था कि बहुत बढ़िया हस्बैंड बनेगा, उस लड़के ने ये डिसाइड कर लिया कि आजीवन कवारा रह जाऊं, तो दुखी सा हो गया। तो वहां से रंगा चला। अब नरेटर को याद आती है रामाराव की एक नीच थी जिसका नाम था रत्ना, यानी 11 वर्ष की लड़की, और वो अपने मामा क्या रहने के आई थी। वो एक शहर से थी, इसीलिए उसको गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। मैंने कल आपको रेफरेंस दिया था नेहा कक्कड़ का, नेहा कक्कड़ की जैसी आवाज़ थी, हालांकि स्टोरी में नहीं लिखा हुआ है, मैंने दिया था वो रेफरेंस। उसके दोनों पेरेंट्स एक्चुअली में मर गए थे, तो वो अपने उनके यहाँ रहती थी। तो नरेटर जो है गया वहां पर रामाराव के घर पर, क्योंकि वो उसका दोस्त था। अच्छा, बीइंग फ्रीक्वेंट विजिटर, रत्ना वाज क्वाइट फ्री विद द नरेटर। तो उसने उससे कहा था कि ऐसा करना, रामाराव की वाइफ से कहा था कि रत्ना को भेज देना, तो वो कुछ बटर मिल्क लेके आ जाएगी। बटर मिल्क छाछ होती है। फ्राइडे का दिन था, रत्ना जो बढ़िया है अच्छी साड़ी में सज धज के आई छाछ लेने के लिए नरेटर घर पर। इसी बीच नरेटर ने रंगा को बुला रखा था। अब दोनों की मीटिंग तो करानी थी, क्योंकि नरेटर तो एक मैच मेकर है, श्यामा। अब जब रत्ना गई घर में तो रत्ना से नरेटर ने रिक्वेस्ट की कि कुछ गा के सुना देना। तो रत्ना गा रही थी कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तभी जो है रंगा आ गया। रंगा ने देखा कि कोई जो है गा रहा है। अब जब उसने देखा कि कोई गा रहा है तो अचानक से रत्ना ने देखा कि कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से रत्ना ने अपना गाना बंद कर दिया। अब जैसे ही रत्ना ने गाना बंद कर दिया ना, तो रंगा को कैसा लगा। देखिए, रंगा wanted to see the singer but he did not want to stop the singing। वो सिंगिंग को स्टॉप नहीं करना चाहता था, लेकिन क्यूरियस हो रखा था सिंगर को देखने के लिए। तो जैसे वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ा था ना, तो दरवाजे में से हल्की सी लाइट जा रही थी ना, वो ब्लॉक हो गई
ऑब्वियसली सी बात है, जब दरवाजे पर कोई खड़ा हो जाए ना तो पता चल जाता है कि कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि जो लाइट बाहर से अंदर आती है ना वो बंद हो जाती है। तो खैर कोई नहीं, जैसे ही रत्ना को पता चला कि कोई आया तो उसने सिंगिंग स्टॉप कर दी। अब जैसे ही सिंगिंग स्टॉप हुई तो रंगा को बहुत बुरा लगा। उसको किस तरीके से बड़े ही फनीली नैरेटर ने एक्सप्लेन किया है कि मान लो ऐसा लगा था जैसे कि आपने बेस्ट क्वालिटी का मैंगो परचेज किया, आप उसको एकदम से नहीं खाना चाहते, आप उसको छील छील के उसके एक एक छिलके का टेस्ट ले ले करके छील रहे हैं। बिफोर यू टेक अ बाइट द मैंगो स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड, वो मैंगो आपके हाथों से फिसल जाता है। कोई भी तुम्हें से नहीं कहा धोखे खा लेंगे सर, क्योंकि मोस्टली चिल्ड्रन द क्लास जैसे कोई नहीं सर धोखे खा लेंगे, कोई नहीं खाता। खैर ये मजाक वाली बातें होती हैं। तो जब मैंगो एक बाइट लेने से पहले ही आपके हाथों से फिसल जाए, हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? टेल मी हाउ वुड यू फील? हैं? जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बंद कर दूं फिर पढ़ाना, देख लो। हाँ जी, हाउ विल यू फील? क्या सर? अरे सुना ही नहीं तुमने, मैंने पूरा चिल्ला चिल्ला के पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी, क्या असर कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जब रत्ना अंदर गाना गा रही थी नैरेटर श्यामा के घर पे, उसके रिक्वेस्ट करने पर वो गाना गा रही थी कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ठीक है। उसी टाइम पर उसी वक्त पर नैरेटर ने रंगा को बुला रखा था। आई मीन वो जब अंदर गा रही थी तब रंगा दरवाजे पर पहुंचा। तो जब गा रही थी तो दरवाजे पर पहुंचते ही रत्ना को थोड़ा एहसास हो गया कि कोई दरवाजे पर आ गया है, तो उसने अपनी सिंगिंग स्टॉप कर दी। क्या कर दी उसने? सिंगिंग स्टॉप कर दी। जब सिंगिंग स्टॉप कर दी तो रंगा को बहुत बुरा लगा, यानी कि ऐसा बुरा लगा जैसे कि सपोज करो आपने बेस्ट क्वालिटी का मैंगो परचेज किया है, समझ लो, बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का, आप इसके एक एक छिलके का आनंद ले रहे हैं। आप एक भी बाइट लेने से पहले इसके छिलकों का टेस्ट ले रहे हैं, और आप एक बाइट लेते कि उससे पहले मैंगो आपके हाथों से फिसल गया, गिर गया, नीचे जमीन में गिर गया, आपको कैसा लगेगा? ये था मेरा क्वेश्चन, कैसा लगेगा आपको? सर बुरा। बुरा। द सेम रंगा फेल्ट व्हेन रत्ना स्टॉप्ड सिंगिंग, ऐसा ही रंगा को लगा था जब रत्ना ने क्या कर दिया था? बोलो, रिप्लाई करो फटाफट फटाफट से। सिंगिंग बंद कर दी थी। या जब सिंगिंग बंद कर दी थी, समझ गए। खैर बेचारा शर्माते हुए अंदर तो गया, तो फिर कहता नीचे गर्दन करके कि इट वाज बिकॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से बंद हो गया, मैं चलता हूँ। तो नीचे से बार बार रत्ना की ओर देखे। एक बार नरेटर ने देख लिया, अच्छा रत्ना की ओर देख रहा है, तो शर्मा गया, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। कह रहा है वर्ड्स मियर वर्ड्स, बट द फेलो डिड नॉट मेक अ मूव, बस बोल ही रहा है लेकिन एक कदम नहीं रख रहा है। हाउ कैन वन मैच द वर्ड्स विद द एक्शन इन द डेज ऑफ कलियुगा? कितना बढ़िया कंपैरिजन। कलियुग के इन दिनों में कोई व्यक्ति किसी की कथनी और करनी को कैसे मैच कर सकता है? बंदा कह रहा है कि मैं चलूं चलूं, लेकिन अपनी निगाह नहीं तोड़ रहा है रत्ना की तरफ से, मन ही नहीं हो रहा उसका जाने का। तो नरेटर कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं है। फिर फाइनली जो है रंगा वहां से चला आया, कोई बात नहीं। यानी कि नरेटर सॉ द सीड ऑफ लव एंड अफेक्शन इन द माइंड ऑफ रंगा टूवर्ड्स रत्ना, यानी बीज बो दिया रंगा के माइंड में। ही मेड हिम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रत्ना, अट्रैक्टेड कर दिया क्योंकि मुलाकात उसने कराई इसीलिए थी। नाउ ही विल मेक सम स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए द नरेटर वेंट टू शास्त्री। अगले दिन शास्त्री के पास गया। बोलो शास्त्री गर्ल, हाँ शास्त्री समझ रहे हैं ना, शास्त्री मीन्स एस्ट्रोलॉजर। बोले शास्त्री जी हाँ, कि मैं आपसे कुछ हेल्प लेना चाहता हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। बोले बताओ क्या है? कि ऐसे ऐसे हमारे विलेज अकाउंटेंट का बेटा रंगा जो घर आया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी इससे हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये बोलना है कि रंगा के मन में रत्ना का ख्याल आ रहा है। किसका ख्याल आ रहा है? रत्ना का ख्याल आ रहा है, बस आप इतना कह देना। बोले ठीक है कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन नरेटर फिर से जो है रंगा के घर विजिट करने के लिए आया।
तो जब विजिट करने के लिए आया तो नरेटर ने सिंपली पूछा, हाय हाउ आर यू रंगप्पा? रंगप्पा said, yeah, I'm fine, all fine, no problem. You seem some worried, looking worried, tension, headache is there, let's go to the doctor. कह रहा है अगला कि मैं ठीक हूं, मैं फाइन हूं, नहीं 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 ऐसा लग रहा है हेडेक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास ले जा रहा है। अब डॉक्टर के पास कह के जब लेके आया तो ले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, बट इन बिटवीन ही टुक हिम टू द शास्त्री एज पर द कनाइवेंस ही मेड विद द शास्त्री। यानी कनाइवेंस जो स्ट्रेटेजी मिली भगत थी ना शास्त्री की नरेटर की, तो कह रहा कि रंगा देखो मुझे नहीं पता आपके साथ में वो प्रॉब्लम हो, पर चलो पूछने में क्या जाता है, क्योंकि जब मेरे लिए लड़की का सिलेक्शन हो रहा था, यानी मेरे लिए शादी की बात चल रही थी, तो लड़की के चुनने की बात चल रही थी, तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा सा खोया खोया सा रहता था, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ में वो प्रॉब्लम है, लेकिन चलो दिखा लेते हैं, शास्त्री से मिल लेते हैं एक बार कि क्या आपके गुरु और शनि आपके फेवर में है या नहीं है, आई मीन आपके ग्रह नक्षत्र आपके हिसाब से ठीक चल रहा है या नहीं, चलो इस बात का पता कर लेते हैं। तो बिफोर टेकिंग टू द डॉक्टर ही टुक हिम टू द शास्त्री, क्योंकि उसका तो इंटेंशन ही यही था कि उसको शास्त्री के पास लेके जाए। शास्त्री के पास ले गया। अब शास्त्री के पास ले गया तो शास्त्री ने जाते ही पूछा, अच्छा ओ व्हेन डिड द सन ऑफ माय अकाउंटेंट केम, कब आया था, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, एंड देन शास्त्री ने नरेटर से पूछा कि आप भी बहुत कमाते हो, क्या बात है? तो नरेटर ये कहने वाला था कल ही तो आया था, और अगर ये कह देता ना तो पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता, पूरा का पूरा प्लान ऐसे चौपट हो जाता मानो के ज्यादा धूप में पड़े हुए अनाज को ज्यादा हीट होने की वजह से फट जाता है ना, ऐसे पूरा का पूरा प्लान इनका चौपट हो जाता। लेकिन खैर इस बात को जो है संभाल लिया था। किसने संभाल लिया था? इस बात को संभाल लिया शास्त्री ने। अच्छा अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? ओनली टुडे यू हैव कम हियर, ओके व्हाट कैन आई डू फॉर द सन ऑफ अकाउंटेंट? तो बोला, नरेटर बोलता है मे बी हैव द टेस्ट ऑफ योर साइंस अय्यप्पा, क्या हम आपकी साइंस का टेस्ट ले सकते हैं? कौन सी साइंस का? एस्ट्रोलॉजी की साइंस का। तो कहता है कि देखिए अय्या, आर्स इज एन एंशिएंट साइंस, इसके बारे में बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन टेलिंग अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी इज नॉट गुड एट ऑल बिकॉज ऑलरेडी द नरेटर हैज टोल्ड सेवरल स्टोरीज, इट अलाउज ओनली इन हरिकथा, यानी ये तो केवल हरिकथा में होता है, कहानी के अंदर कहानी सुनाना, और ये कोई हरिकथा नहीं है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहानी आपको बाद में बताऊंगा, अभी ये बात बताता हूँ आपको। तो नरेटर ने शास्त्री से रिक्वेस्ट की कि आप बताइए कि हमारे रंगप्पा के मन में क्या चल रहा है। द शास्त्री ब्रॉट सम कॉडीज एंड पत्रा, पत्रा जानते हैं ना, बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और फिर उसने कुछ कैलकुलेशंस की। तो कैलकुलेशन करने के बाद में उसने कहा कि रंगा के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो समुद्र में पाया जाता है। नाटक कर रहा है, देखिए शास्त्री बिना बात सारा का सारा पता है कि क्या कहना है, लेकिन एकदम से बात खुल जाएगी, रंगा पहचान जाएगा, तो बात को घुमा रहा है कि कुछ ऐसी चीज चल रही है जो समुद्र में पाई जाती है। बोले क्या हो सकता है? बोले ये सी मॉस हो सकती है, पक्षी हो सकती है, और क्या हो सकता है? हाँ ये ज्वेल हो सकती है, रत्न हो सकता है। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट। तो इसका मतलब रंगा हमारा रत्ना के बारे में सोच रहा है। फिर उसने पूछा, शास्त्री जी एक बात बताओ कि इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग द मैरिज ऑफ रंगा विद रत्ना? क्या ऐसे चांसेस है? कि हाँ चांसेस तो हैं। फिर थोड़ी देर बाद रंगा नरेटर ने कहा कि लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है, जो रत्ना है रामा राव के घर पर, वो तो शादीशुदा है। वो ये बात कह के जैसे ही रंगा की तरफ देखा, रंगा का मुंह भुने हुए बैंगन की तरह लटक गया। खैर कोई बात नहीं, वहां से वो चल पड़े। अब चल पड़े तो रास्ते में नरेटर ने रंगा से पूछा, रंगाप्पा सही बताना तुम्हें माधवाचार्य की कसम है, तुम्हें माधवाचार्य की कसम है, जो कुछ शास्त्री जी ने कहा था क्या वो सही था? तो रंगा कहता कि हाँ वो सही था, मैं रत्ना के बारे में सोच रहा था। अच्छा, खैर रास्ते में ही रत्ना का घर पड़ा। और जब रत्ना का घर पड़ा तो रंगा को बाहर छोड़ करके नरेटर जो है रत्ना के घर में गया और बाहर आया 1 मिनट के बाद ही, और कह रहा सरप्राइज, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड। रंगा के चेहरे पर वही खुशी आ गई, यानी कि फाइनली रंगा गॉट मैरिड विद रत्ना। रंगा की शादी किससे हो गई? रत्ना से हो गई। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद में फिर जो है नरेटर शास्त्री के पास गया है। अब जब शास्त्री के पास गया तो शास्त्री का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, शास्त्री की शास्त्र का मजाक उड़ाया जा रहा है।
और क्या शास्त्री गर्ल, तो आपने वो सारी चीजें तोते की तरह बोल दी जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। अच्छा, ये बात शास्त्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शास्त्री ने कहा कि एक भला आदमी एक अच्छा आदमी कभी भी किसी की रोजी रोटी का मजाक नहीं उड़ाता। और हाँ सुनो, जो कुछ आपने मुझे हिंट दी थी ना, उनको मैं अपने कौड़ी और पत्रा की हेल्प से भी, अपनी एस्ट्रोलॉजी की साइंस के बल पर भी बता सकता था मैं। और एक अच्छे इंसान को कभी भी जो है एस्ट्रोलॉजी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सेड द शास्त्री। खैर, आफ्टर सम टाइम, यानी कि रंगा का जो बेटा था ना वो 3 साल का हो गया। और जब 3 साल का हो गया तो रंगा जो है अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए, बेटे के बर्थडे पर नरेटर को इनवाइट करने के लिए आया। और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा बेटे का बर्थडे है और आप आइए। बोले क्या नाम रखा है? कि हमने उसका नाम श्यामा रखा है, क्योंकि इंग्लिश ट्रेडिशन ये कहती है कि जब कपल किसी व्यक्ति को पसंद करता है ना तो अपने बेटे का नाम उसी के नाम पर रख देते हैं। अब सिंस रत्ना एंड रंगा बोथ लाइक्ड द मैच मेकर श्यामा, दैट इज व्हाई दे नेम्ड देयर चाइल्ड श्यामा। तो कह रहा है कि देखो, मैं तो एक ऑयल केक के पीस की तरह हूँ। ऑयल केक होता है खल, खल जानते हो? खल जानते हो? खल डू यू नो खल? अरे जो पशुओं को खिलाई जाती है, जो सरसों से निकलती है, सरसों की खल और बिनौले की खल। खैर आपको पता होगा, कोई बात नहीं है। तो कह रहा कि मैं तो खल के एक पीस की तरह काढ़ा हूँ, मैं तो काढ़िया हूँ भाई, मैं तो कालटिया हूँ। मेरा नाम तो चलो श्यामा है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अपने गोल्डन जैसे बच्चे को, सुनहरे जैसे बच्चे को ये नाम क्यों दे दिया है? खैर मैं जानता हूँ तुम क्यूट सा कपल हो, तुम और रत्ना, और तुमने जो है इंग्लिश कस्टम को फॉलो किया है कि जिसको कपल चाहता है उसी का नाम दे देते हैं। तो चलो मैं आऊँगा। तो नरेटर जो है रत्ना रंगा के घर पर गया, और घर पर गया तो श्यामा आया दौड़ता हुआ। अब यहाँ पर ये दूसरा श्यामा कौन है? रंगा का बेटा है। वो दौड़ता हुआ उसकी टांगों से लिपट गया, और नरेटर ने उसकी टाइनी फिंगर में, छोटी उंगली में क्या लगा दी? एक छोटी सी रिंग पहना दी एज अ बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, दिस वे द चैप्टर एंड्स एंड द नरेटर सेज दैट आई होप दैट यू आर नॉट बोर्ड एंड नाउ आई वांट टू लीव, allow me please, I will tell you some other story. This way the narrator takes the ending. Okay, did you like the story? Yes, sir. Very good, wonderful. तो ये थी रंगा's मैरिज। इस तरीके से रंगा की मैरिज हुई। आप में से still there are several children who have not subscribed the channel. Lux Poswal, you have not subscribed. नेहा, you have not subscribed. हेमंत यादव, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। ईशू, यू एज वेल। क्यों नहीं कर रहे? कर दो चैनल को सब्सक्राइब। Am I audible to all of you? Yes, sir. नेहा, चैनल को सब्सक्राइब करना है आज। नेहा, लक्ष्य, हेमंत, ईशू, चारों। और तुम नीचे वाले तीनों, जसवीर, यशिका, प्राची। प्राची ने तो कर दिया, इतना पता है मुझे। यशिका ने मैंने कर रखा है। अच्छा कर रखा है, गुड। यशिका तुमने नहीं किया है ना? सर कर रखा है मैंने तो बहुत दिनों से, अरे स्टार्टिंग में ही कर दिया था, जो आपने फर्स्ट वीडियो भेजी थी तभी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम बेटा जो बच्चे हुए हैं सर, सॉरी कौन सा चैनल है? अरे आई एम जस्ट शेयरिंग द वीडियो, जस्ट वेट। जो आज मैंने पढ़ाया है ना, इस वीडियो का आपके ग्रुप में डाला जाएगा आज फटाफट से। 10 मिनट के अंदर वीडियो आप तक आएगा एंड यू हैव टू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, ओके, एंड देन शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। फाइन? ओके सर। देखो, तुम मेरा जज्बा, तुम मुझे कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा। आई विल गिव माय बेस्ट। आई विल नॉट लेट यू फील डिसअपॉइंटेड कि यार मजा सा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बोरिंग लग रही है। यू नो देयर आर चिल्ड्रन हु फील दैट इंग्लिश इज बोरिंग, बट आई विल नॉट लेट इट बिकम बोरिंग एट लीस्ट। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने दो, चिंता मत करो। यू जस्ट कीप मोटिवेटिंग मी एंड योरसेल्फ, ओके। सो टुडेज होमवर्क इज राइट डाउन द समरी ऑफ द चैप्टर। आज का होमवर्क क्या है पता है? What is the homework of the day? Write down Summary. summary of the chapter. Okay, okay. Bye bye all of you. Please take care. Bye, sir. बाय सर।